क्या विश्व फिर से एक बड़ी स्वास्थ्य आपदा की ओर बढ़ रहा है? क्या ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस यानी HMPV वही खतरनाक खेल खेलने वाला है जो हमने 5 साल पहले कोविड-19 के समय देखा था? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अस्पतालों की भीड़, मरीजों की कराह और डॉक्टरों के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन रुकिए, चीनी अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है। हाँ, उन्होंने इसे एक मौसमी बीमारी करार दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चीन में एक ही वक्त पर 4 वायरसों का खतरनाक घालमेल हो रहा है। इन्फ्लुएंजा ए, कोविड-19, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और अब HMPV। मलेशिया में 45% बढ़ चुके HMPV के केस, जापान में फ्लू का प्रकोप और भारत में भी 7 HMPV के केस सामने आ चुके हैं। क्या ये एक बड़े खतरे की आहट है? और अब सवाल ये उठता है कि भारत कितना तैयार है? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन क्या ये काफी होगा? बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में HMPV का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। 4 जनवरी 2025 को परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें चीन में तेजी से बढ़ रहे श्वसन संक्रमण के मामलों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कुछ मुख्य बातें सामने आईं। फिलहाल की स्थिति चिंताजनक नहीं है। चीन में फ्लू का मौसम चल रहा है और वहां इन्फ्लुएंजा, RSV, रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस और HMPV के कारण मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो आमतौर पर सर्दियों में होता है। भारत में फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यहाँ पहले से ही इन्फ्लुएंजा और श्वसन संक्रमणों की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने भी पुष्टि की है कि मौसमी बदलाव के अलावा श्वसन रोगों के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ सलाहकार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोच्चि के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन से बात की। वे कहते हैं कि there is a lot of public anxiety about HMPV or human metapneumovirus. Just because the name of the virus is long and impressive, that doesn't mean the virus is severe or serious. This is a common cold virus that has affected most children around the world already for decades. It has been around. It is just that when we get a common cold as a child, doctors are not going to test what virus it is due to because it's a self-limiting illness. The condition goes away on its own. So outside of research settings, these tests are not done. The visuals that are apparently from China show crowded hospitals with people wearing masks and holding IV drips. But these are common occurrences every winter season in China, and there is no indication that this season is any different. But the narratives that have been inserted along with these visuals are quite compelling, and in fact they fool many people into thinking there is something really wrong that is happening in China. People are mainly afraid because the COVID-19 pandemic had similar origins when cases were first reported in China and they reached all around the world. So this discovery of HMPV in India has nothing to do with a new virus. It is just that when the hospital checked what viruses are affecting the child, they found human metapneumovirus, as they always did all around the world. So in other words, this is not a new virus, this is not a virus to be afraid of, and this is not COVID, and it is not going to be a pandemic. This is an example of how much public anxiety can be caused by such forwards. The HMPV is one of several viruses that cause common colds in children. In fact, if we take children aged 3 or 4, almost all of them would have had at least one bout of HMPV infection. While it's true that in very few instances it can turn severe, that's the case with almost all pathogens that are known to man, viruses and bacteria included. There's no indication that a mutation would have occurred with this virus because there's been no change in its behavior, its clinical pattern or mode of spread. An important lesson is do not trust everything we see and read on social media, especially random forwards from foreign countries with scary narratives. ICMR पहले से ही एडेनोवायरस, RSV और HMPV जैसे वायरस की जांच कर रहा है। फिलहाल किसी वायरस के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर HMPV की जांच करने वाली लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरे साल इस पर निगरानी रखी जाएगी। घबराने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। छाती में संक्रमण आमतौर पर 5 से 7 दिनों तक रहता है। एंटीबायोटिक्स लेने से बचें।
लेकिन सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। तो बस सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हम आपको इस स्थिति पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए अपडेट की जानकारी तुरंत मिले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।